Am I audible? Okay. Yeah, so a very good evening. And today is the third lecture of electrostatics. I believe that you have received the first two videos and that you will go through them whenever you need. I don't think you might need, but still, because I'm sure that you have understood the lecture. So I think repetition is not required. So let's begin today's lecture. I don't think you need it because you can always refer to the video, right? I will still upload it. It does not have anything. It's just me on the PowerPoint, right? CN. So, anyways, I will give you, but it doesn't have any significance as far as the examination is concerned. I believe that every lecture does not require a PDF. I think the ones which I will be doing important things, or if I am doing MCQs, I think at that point it will help, right? Yeah, because I think you should rely more on the textbook. I am here to clear the concept. And as far as, uh, you know, I feel that even you're making your notes, I believe, during the lecture, right? So I think it should not affect anything. And I'm giving you the entire video, right? Mm. Still, I will pass it on. I don't know how it is going to help, but anyways. So let's start off with the electrostatics lecture number 3. Can I begin? Are you all here? I'm just waiting for some of them still joining. Okay, today is a combined batch, so I may not be able to see the chat box, from time to time, but I'll still try my best to read everything that you send. Okay. Yeah, because physics you have to love. That's why I wrote that. Love physics this Valentine's Day. Just to keep you aware that nothing else should distract you there, really, except physics. So let's get started. Let's begin. So the first topic today, yes, it is a black day. I agree. Now let us begin today with a very, as I said, I'm clearing the concept. In the last lecture, I cleared some very important concepts. We saw how, there is some mass energy relation also involved, which is not mentioned in the book also. That means there are some hidden concepts. So when you go after the lecture, what I teach you, and you go and read the textbook, everything will make sense. Because every line that they write in the textbook is based on some theory. So like we looked at the Benjamin फ्रैंकलिन का लाइटनिंग का थियरी जो हमें पता नहीं था कि किसने किया था ये. We looked at Faraday's series, and I told you to remember the 9 elements that we might need for this. Yes or no? So the main concept जो है आपको मेरे साथ clear करना है. That is the main objective of taking a lecture online with the professor. नहीं तो you can always rely on so much content online. But the reason that I am here in front of you is that your concept,
your way of understanding will be different and it will vary from person to person. हर एक को उसी स्टाइल में समझना जरूरी नहीं है. मेरी ये कोशिश है कि आप सबको एक ऐसा फाउंडेशन दें ताकि कोई भी आपसे सवाल करे, चाहे जेई पूछे, एमएचसीईटी पूछे, नीट पूछे, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पूछे, यू हैव टू बी ready to strike the answer. So let's get to it now. Now, there are two types of materials. दो तरीके के मटेरियल होते हैं, टाइप्स बोल सकते हैं. I can call the first title for today as the classification. I can call today's first title as classification of materials. Okay, so you can write with me so that you don't have to separately spend extra time for it. I always believe that time is precious. Whatever 1.5 hours you're sitting with me should be utilized. So what are the classification of materials? We have two types of materials. In fact, we have 4 types of material. Anybody can think about it. If I put the first name, you'll obviously know the other 3 names. The materials जिस तरीके से वो charges को allow करते हैं. No, I'm not asking you matter. Yeah, okay. Nusrat is answering conductor. Okay, correct. Insulator, Parab. Correct. So, okay, I can see in the screen, like I can see a lot of chats which are scrolling my page. Okay, I can't even read it 30, 35 at a time. So I can see insulator, I can see conductor, I can see semiconductor. Anybody the fourth one? Let me see who knows the fourth one. So I agree with many of you. Yes, Tejas, Bilava, Aditya, Saurabh, Manav, Vidhi, very good. So you all have answered the fourth one. So everyone knows conductors. There are conductors, there are insulators, then there is semiconductors, which is showing both the properties. And finally, there is superconductor, which many of you have answered. तो based on material किस तरीके से behave करता है, उसके अंदर जो property है, उसके base पर हमने उसको क्या कर दिया, differentiate किया, हमने उसको classify कर दिया, separate कर दिया, अलग अलग कर दिया. उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने उनके प्रॉपर्टीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनकी बिहेवियर, उस तरीके से हम क्या कर देते हैं, इसको बाइफिकेट करते हैं, यानी कि सेपरेट कर देते हैं. सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट कंडक्टर्स, कैन आई से conductors are all materials which allow charges to move freely? Chalega? Can I say conductors are nothing but all those materials which allow to move freely? तो इसको मैं ऐसे लिख रही हूं, आप भी लिख सकते हैं मेरे साथ. All materials, I just try writing it with my this, so it will be faster to write. So I'm just defining here it as all materials which allow charges to move freely. To move freely within them. I can call this as example, same metals. Metals example है जहां पर मैं बोल सकती हूँ कि this is the definition for, conductors. अगर मैं insulator की बात करूं,
if I talk about insulators, can I say that they are materials, yeah, all materials which do not allow the electrons or the charged particles to move freely? To move freely within them, right? They are called as insulators. I have examples like plastic, I have examples like porcelain. These are all materials which do not allow. अब आप मेरे को बताओ, see, so there are two types of materials, conductors and insulators. What I'm trying to tell you is it okay to have only conductors, or is it always better to have a combination? I'm asking you something before I go to semiconductor and superconductor. Is it okay to have everything? हम क्या चाहते हैं कि हमारे हर सिस्टम में सिर्फ कंडक्टर ही होना चाहिए? क्या होगा कि अगर ऐसा होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज को, बिकॉज आई एम exactly not physically present in front of you, so I want you to keep your ears open of what I'm saying. अगर आपने अपने हाथ में सपोज यू आर स्टैंडिंग और तुम्हारे हाथ में तुमने एक कंडक्टर लिया है जो कॉपर का बना है, और तुमने उसको चार्ज कर दिया। ध्यान से सुनना, तुमने इसको चार्ज कर दिया। कॉपर क्या है? मेटल है, और तुमने उसको चार्ज कर दिया। तुम्हें पता है अभी चार्जिंग वगैरह क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ये तुम्हारे हाथ में तुमने पकड़ा है इस कॉपर को, कॉपर कौन है? मेटल है, राइट? और हमने यहाँ डिफाइन किया है कि द चार्जेस, if you highlight on what I have written, the charges can move freely within them. इसका मतलब है इसके अंदर जो चार्जेस हैं, कैन आई से कि एक एंड से दूसरे एंड जा सकते हैं? यस और नो? यस। और इस कॉपर को तुमने पकड़ा है, बराबर? और तुम जो है, तुम्हारा जो पैर है, मतलब यू आर स्टैंडिंग ऑन द सरफेस, इज अर्थ अ कंडक्टर? इज अर्थ अ कंडक्टर? यस, अर्थ इज अ वेरी गुड कंडक्टर। अगर ऐसा है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये चार्जेस तुम्हारी बॉडी से होकर नीचे की तरफ जा सकते हैं, मूवमेंट हो सकता है? इज इट पॉसिबल? यस और नो? यस। अगर किसी ने आपसे पूछा कि अभी आप कॉपर नहीं यूज कर रहे हैं, आपके हाथ में ग्लास का रॉड है, इसको मैंने चार्ज कर दिया, ग्लास रॉड को। अब है तो ये इंसुलेटर। सो कैन यू टेल मी, आई थिंक विकास हमने लास्ट टाइम किया था ना, अर्थ इज अ कंडक्टर करके, लाइटनिंग का इफेक्ट दिखा था हमने कहा था कि अर्थिंग जीरो पोटेंशियल है, बट वहां कोई ना कोई तो पोटेंशियल रहता है। आपने घर पे आपके अर्थिंग करते हैं हम लोग, प्लग जो होता है उसमें न्यूट्रल होता है, लाइव होता है और अर्थिंग होती है। सो देयर इज ऑलवेज 0 वोल्ट, देयर इज सम पोटेंशियल टू अर्थ। और हम बोलते हैं कि सबसे डेंजरस कौन सा है? वेट अर्थ। अर्थ जब वेट रहता है ना, तो वो कंडक्टिंग ज्यादा करता है। ओके अच्छा, तो मैंने जो है ग्लास रॉड पकड़ लिया। आई थिंक दिस इज, आपने स्कूल में पढ़ा रहेगा साइंस में, अर्थ इज अ कंडक्टर, डिफरेंट वेज ऑफ प्रूविंग दैट इट इज। अब ग्लास रॉड को भी मैंने चार्ज करके हाथ में पकड़ा है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये चार्जेस यहाँ मूव होते हैं और क्या वो जाएंगे? आंसर इज नो, बिकॉज ग्लास रॉड इज एन इंसुलेटर, कॉपर is a conductor, copper is a metal. What I am trying to tell you is, power supply, for example,
अपना पावर आ रहा है, ओके, से फॉर एग्जाम्पल अपना पावर का ट्रांसमिशन होता है, ओके, एक स्टेशन से आपके घर तक, मतलब पावर हाउस से आपके घर तक पावर कैसे आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? कैसे आ रहा है? क्या हमने ग्लास यूज किया है या हमने कॉपर वायर यूज किया है? हमने वायर्स यूज किए हैं। यू एग्री? क्या यूज किया हमने? वायर्स यूज किए। वेरी गुड। सो वी हैव यूज्ड वायर्स। एंड इफ यू नो दैट एक ऐसा एक ये है स्ट्रक्चर है, और यहां से यहां ऐसे वायर्स के जरिए ये पावर हाउस जो भी रहेगा वहां से होकर आपके घर तक आ रहा है। यू एग्री? टावर से होके आपके घर तक आ रहा है। अब सवाल ये उठता है, लेट मी सी हु इज द स्मार्टेस्ट, या किसी ने ये देखा है क्या? थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा कि अगर ये कॉपर वायर है, यू एग्री, एवरीवन नोज दैट इट इज कॉपर वायर, अगर सिर्फ कॉपर का वायर ही यूज कर रहे हैं हम लोग, तो क्या ये चांस नहीं है कि ये जो करंट यहां जा रहा है, ये जो मेटल ये है, ये नीचे की तरफ आ जाए? ये ऐसा जाएगा, फिर यहाँ नीचे की तरफ जाएगा, तो तुम्हारे घर तक तो कम करंट पहुंचेगा। तुमको पता है क्या करते हैं वो लोग इंसुलेटर्स यूज करते हैं। हर जगह पे कंडक्टर लाइव नहीं है, हर जगह पे कोटिंग है, एक कवरिंग है, और यहाँ पर वो पोर्सिलीन लगाते हैं ताकि ये जो है वो नीचे की तरफ नहीं आएगा, वो सीधा इसी वायर से जाएगा। वो पोर्सिलीन लगाते हैं ताकि ये जो है यहां से जाएगा, नहीं तो नीचे ग्राउंड की तरफ आने के चांसेस होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। हर चीज जो आपने देखा है आज तक, कोई भी वायर हो, आपके चार्जर का वायर हो, मोबाइल का वायर हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या वो वायर आपको दिख रहा है? नहीं। हर जगह पे दोनों रहते हैं, मतलब इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मेटल एंड एन इंसुलेटर। मैं आपको क्या बता रही हूँ, आपने बाइक खरीदी, फॉर एग्जाम्पल एक मोटरसाइकिल खरीदी, चलो बाइक खरीदी, आई एम श्योर मेनी ऑफ द बॉयज वांट टू राइड एन रॉयल एनफील्ड समडे। आप बोलोगे क्या इंजन है यार, मतलब खतरनाक इंजन है इसका, तो यू अंडरस्टैंड, बोलोगे कि आप मेरे को यार, क्या मैं बताऊं, मेरे को फक ये मेरा फैंटास्टिक है। कितना भी अच्छा इंजन हो, कितना भी अच्छा इंजन हो, बिना ब्रेक वाला इंजन तुम चलाओगे? बिना ब्रेक वाला इंजन तुम चलाओगे? नेवर। तुमने कहा नेवर, तुमने कहा नहीं, तुमने कहा नो। एग्जैक्टली माई पॉइंट। कोई भी सिस्टम में सिर्फ कंडक्टर नहीं होता, वहां उसको रोकने टोकने वाला कोई तो चाहिए। आप समझ रहे? उसको स्टॉप करने वाला। मतलब हर एक मशीन में कंडक्टर भी रहता है और इंसुलेटर भी रहता है। ये जो मैंने आपसे कहा है, आपको लाइफ टाइम याद रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप पकड़ेंगे, उसमें सिर्फ कॉपर नहीं है, उसमें सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर्स नहीं है, उसमें कैपेसिटर भी होगा, उसमें इंडक्टर भी होगा, उसमें डायोड्स भी होगा। तो इसका ये मतलब है हर सिस्टम में इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर। everything that you can think about, nothing is open to you. You can't touch. Can you touch the coil of your geyser? No, everything is covered in an insulator. That's what I'm trying to tell you, so that it doesn't get transmitted to you. अभी तुम आयरन बॉक्स चलाते हो, तो क्या तुम डायरेक्टली वो मेटल पे हाथ है तुम्हारा? नहीं, तुम्हारा हाथ वो इंसुलेटर पे है, वो प्लास्टिक के इस पे है। नहीं तो यार तुम ट्रांसमिट होके कब के उड़ गए होते। यू अंडरस्टैंड? फिर शॉक नहीं, कुछ और इफेक्ट समझ में आता। आई होप यू आर क्लियर विथ व्हाट आई एम सेइंग। मैं तुमको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर एक सिस्टम जो हम बनाते हैं इज अ कॉम्बिनेशन of conductors and insulators, and hence you cannot avoid and say अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो यार इंसुलेटर पे डाइलेक्ट्रिक दिखता है, डाइलेक्ट्रिक्स एंड इंसुलेटर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सिर्फ इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं।
आप ये नहीं बोल सकते कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग सिर्फ कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं. नो, इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन. आई होप यू आर गेटिंग इट. So conductivity is the property, so there is conductors and there is insulators. तो when we talk about conductors, हम जिस प्रॉपर्टी के बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी का नाम है कंडक्टिविटी. क्या है इसका नाम? कंडक्टिविटी. और जब भी हम लोग इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं, अभी हमें समझ में आ गया कि भाई कॉम्बिनेशन है. यू अंडरस्टैंड? तो दोनों को, एक की प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्टिविटी उसकी प्रॉपर्टी है, उसका नेचर है कि वो कोई भी मेटल या कोई भी रॉड के वन एंड से दूसरे एंड तक चार्जेस को वो मूव करवा सकता है फ्रीली. इसलिए हम कंडक्टर्स को यूज करते हैं. इंसुलेटर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. डाइलेक्ट्रिक वर्ड मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था लेक्चर नंबर 1 में. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है. हमें दोनों चाहिए. यू अंडरस्टैंड? हमें दोनों चाहिए. सो दिस कंसेप्ट, yes, I will be explaining something, Dipesh. Just wait till I come there. Yeah, you'll understand what I'm saying. Air is dielectric, beta. If that solves your doubt. Air is dielectric. इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से नहीं जाएगा. You understand? Air is dielectric. I hope that factor is, yeah, comes to clear. Okay. So now, if sometimes they behave like conductor and sometimes they behave like insulator, I'm not going to go much in detail of this because you have a separate chapter, and that is called as semiconductor, right? Silicon and germanium, the tetravalent elements, come under this category. इसमें हमने एक्चुअली क्या देखा? एक तो हमने देखा कि जब ये ठंडा रहता है, जब बहुत ही कूल रहता है, तब वो इंसुलेटर होता है. अगर हम उसको थोड़ा सा हीट दे देते हैं, वो कंडक्टर बन जाता है. इसलिए हमने उसका नाम रखा सेमी. अधूरा सा है थोड़ा, ना पूरा कंडक्टर है ना पूरा इंसुलेटर है. At a very low temperature, when it is entirely cool, we could say, semiconductors belong to tetra, fourth group. टेट्रा है वो लोग. ठीक है. उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो 14 आप बोल रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट टेट्रा, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द वैलेंसी बेसिकली. या, इज दैट ओके? या. सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर्स क्या एकदम ठंडा रहेगा ना, तो हम बोलते हैं कि वो इंसुलेटर की तरीके से बिहेव करता है. नहीं तो वो कंडक्टर की थोड़ा सा हीट दे देते हैं हम लोग. थोड़ा सा बैटरी लगा दो, खुश हो जाता है, बहुत लाइट देता है. इसलिए आजकल हम एलईडी लाइट्स यूज करते हैं. हमारा रिमोट वगैरह सब चीजें जो हैं सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से बनाते हैं. एक तो वो सस्ता है, और एक तो कैसा है, वो मिनिएचराइजेशन करता है. मतलब सारी चीजें क्या हो रही है, पतली होती जा रही है. पहले की मोबाइल और आज की मोबाइल में जमीन आसमान. नाउ यू हैव लाइट वेट मोबाइल्स. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स. ठीक है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स. अपना रिमोट है घर का, 10 बार गिरता है, 10 बार गिरता है, कुछ नहीं होता है, फिर भी चलता है. कभी सोचा है? सेमीकंडक्टर. सो योर कंप्यूटर्स, योर लैपटॉप्स, एवरीथिंग वी आर यूजिंग सेमीकंडक्टर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, सो दैट वी डोंट वांट दैट ओवरहीटिंग एंड ऑल दैट. लास्ट इज सुपर कंडक्टर. सुपर कंडक्टर का मतलब है सुपर है वो एकदम. मतलब क्या है सुपर कंडक्टर? आई थिंक समवेयर बिफोर आल्सो आई मस्ट हैव मेंशन्ड दिस कि मर्क्यूरी इज अ सुपर कंडक्टर. चैप्टर मैग्नेटिज्म में जब मैं आपको डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में बता रही थी, तब मैंने आपको कहा होगा कि यार ये जो है 4.2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बिहेव करता है. यस, जिसके पास मिनिमम रेजिस्टिविटी है, 0, वो कुछ रेजिस्ट करता ही नहीं है, उसको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं. तो काश अगर आप में से कोई सुपर कंडक्टर की खोज कर लेगा तो आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा. बिकॉज वी आर ऑल इन सर्च ऑफ सुपर कंडक्टर्स, बट एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ आवर सिस्टम्स वी नीड some sort of a resistivity. Trust me on that. Now,
let's move on to this next topic. So can I move on? Is this clear? आपको ये समझ में आया है? हम यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे, कुछ प्रॉपर्टी की वजह से क्लासिफाई कर रहे थे. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समझना है कि हम हर जगह पे एक इंसुलेटर की कवरिंग देते हैं, हर चीज पर एक इंसुलेटर की कवरिंग देते हैं. सुपर कंडक्टर मतलब रेजिस्टिविटी नहीं होता है, नहीं होता है. दैट्स ऑल नीरज. मतलब जीरो, जीरो रेजिस्टिविटी. करेक्ट. Now let's come to the next part of the chapter. So, you know, dielectric strength word करके एक word use किया मैंने एक word use किया और आपने भी लिखा होगा. I am talking about dielectric strength. Talking about the word dielectric strength, and I gave this word as a property of insulators. It is a property of insulators. ये insulators की property है. तो इसको थोड़ा समझते हैं. तो I want you to pay attention थोड़ा. And then we can think about whatever you're thinking, you know, because ये बहुत important concept है. ये आपको ध्यान से मेरे बात को समझना है. ट्रस्ट मी, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता. यूजुअली क्या होता है, एक एटम रहता है, एटम के बीच में आपको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस हैं, दैट इज इनसाइड, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है, you know, which is moving, and there are equal number of protons, equal number of electrons, and whatever. Now if I ask you, like, you know, what is the net charge of an atom, you will say it is 0. बट यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ये इंसुलेटर्स में क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहता है. यू नो, मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव को जाने नहीं देगा बाहर जल्दी. यू अंडरस्टैंड? इंसुलेटर्स में क्या होता है, हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं, तो आप कंडक्टर को अभी भूल जाए, हम इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं. इंसुलेटर्स में क्या होता रहेगा कि ये जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियर फोर्स से इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको निकालना डिफिकल्ट हो जाता है. द फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव and the negative inside that atom of an insulator is very very strong. Okay, अगर ये निकल गया तो you know what is happening basically, ये एक दूसरा atom होगा वहां पे, you know, there'll be lot of atoms in a particular material. तो आपको ऐसा सोचना है ये इलेक्ट्रॉन क्या होता रहेगा, यहाँ से यहाँ कूदता रहेगा, you know, फिर यहाँ से यहाँ जाता रहेगा. You know, this will happen when it is going from one place to another and so on. No, Raj, we are not talking about semiconductors. Yeah. So आप वो होल का कंसेप्ट यहाँ नहीं लाए. आप समझ रहे, वो कंसेप्ट ही अलग है. सेमीकंडक्टर का वो जो एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ पीएन जंक्शन है, वो कंप्लीटली अलग है. सो डोंट कंफ्यूज एवरीथिंग टुगेदर. इसलिए तो क्लासिफाई किया भाई उसको. अगर सेपरेट, अगर उसको सबको एक ही पकड़ना था तो क्लासिफाई काहे को किया. यू नो, क्लासिफिकेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, हर चीज को सेपरेट कर रहे हैं, हर एक की प्रॉपर्टी अलग अलग से दी. Now let's concentrate over here. I said concentrate. Now don't think about what should I do, what invention I'll do. Come back to class. So if I'm taking you know, an electron which is sitting inside an atom, आपको ये सोचना है कि इसको मैं बाहर कैसे निकालूं. आपको समझ रहे हैं, ये जो मैंने आपको यहाँ डायग्राम दिखाया है, ये एक ही मटेरियल पे हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, माइनस पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है, थोड़ा इधर उधर उधर ही घूम रहा है, बाहर नहीं आ रहा है अभी तक, बाहर नहीं निकला अभी तक. तो आप मुझे बताओ कि ये बाहर कैसे निकालेंगे. मैं कुछ कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ. आई वांट एवरीवन्स अटेंशन. इंसुलेटर है बेटा, हीटिंग से बाहर कौन निकलता है, सेमीकंडक्टर. क्लियर कर दिया था मैंने तभी. मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप इधर का उधर मिक्स नहीं करें. कंडक्टर्स अलग है, इंसुलेटर्स अलग है, सेमीकंडक्टर अलग है, सुपर कंडक्टर अलग है.
आप क्या कर रहे हो, अच्छा उधर होता है तो इधर भी होता रहेगा, नहीं होता है, समझ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी, यस, तो राम सेज कि और पॉजिटिव चार्ज को इसके नजदीक लेके जाओ, तो मैंने एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल को इसके सामने लेके गई मैं, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। आप समझो एक रॉड है या कुछ भी है, आपको जो इमेजिन करना है, जिसको मैंने बहुत पॉजिटिवली चार्ज था, फिर भी ये जो इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर है, चलो वो बाहर नहीं आया। मैंने फिर और पॉजिटिव किया, 1000 न्यूटन कर दिया। 1000 न्यूटन क्या होगा, फोर्स। 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूं मैं, समझ रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स होगा, फोर्स मतलब क्या होता है न्यूटन में। मैंने 1000 का ये किया, फिर भी ये बंदा नहीं निकला। फिर मैंने और पॉजिटिव लगाया, मतलब आप समझो 10,000 लगाया। कितना लगाया, 10,000 न्यूटन का फोर्स, मतलब इतना ज्यादा लगाया, फिर भी ये बाहर नहीं निकला। मैं चाहती हूं, ये किसकी बात हो रही है, इंसुलेटर की, सोचो ना, इंसुलेटर है भाई, वुड, प्लास्टिक, पोर्सिलिन, ऐसा नहीं कि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट उनके बीच जो पॉजिटिव, उनका जो न्यूक्लियस है और नेगेटिव है, दोनों के बीच इतना इतना, क्या बोल सकती हूँ मैं, इतना फोर्स रहता है कि उसको निकालना वेरी इम्पॉसिबल हो जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। नाउ ध्यान से सुनो मैं क्या बोल, मैंने ये 1000 का 1001 किया, मतलब एक थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा, मतलब पहले से कितना बढ़ा रहे थे, बढ़ा रहे थे, बढ़ा रहे थे, बढ़ा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। 1001 पर, मतलब मैंने जो चार्जेस को एक और डाला इधर, और पावरफुल किया, तो ये बंदा बाहर निकल के आया। अगर ये बाहर निकल के आया, ओके, अगर ये बाहर निकल के आया, अब अब इलेक्ट्रॉन बाहर आया, अब क्या है, ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया, क्या वो सडनली कंडक्टर बन गया, थोड़ी सी कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी दिखाने लगी, है तो इंसुलेटर ही, है तो इंसुलेटर ही, बट उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन, बाबा इतना इतना बोलने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन, इतना फोर्स देने के बाद, इतना पावर देने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, मतलब 10,000 न्यूटन तक उसने अलाउ नहीं किया। तुम समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रही हूँ, 10,000 न्यूटन तक उसने अलाउ नहीं किया। वो 10,000 को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। आर यू गेटिंग इट। नुसरत, प्लास्टिक को अगर आप हीट करेंगे तो बता क्या होगा, क्या होगा, तू खुद ही सोच। आप लोग मटेरियल नहीं सोच रहे हो, मेटल को हीट देने से हम कर सकते हैं, अगर आप प्लास्टिक, ये पोर्सिलीन, इसको सब करेंगे ना, तो भाई जल जाएगा वो पूरा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चली जाएगी। दो प्रॉपर्टीज होती है ना, फिजिकल केमिकल, सब नष्ट हो जाएगा, जल जाएंगे वो लोग, समझ रहे हो, ट्राई करो घर पे, ठीक है। खाना आप प्लास्टिक के इसमें बताओ, गैस में प्लास्टिक ही अब जाएगा, निकालो मेटल। सुनो अभी फिर मम्मी पापा से मिलेगा, फिर ट्राई करो खुद से, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड हीट, जाओ करो। सो देयरफॉर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब क्या, वो 10,000 न्यूटन तक, वो 10,000 न्यूटन तक उसने क्या किया, उसने अलाउ नहीं किया। उसी को हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल या दैट पर्टिकुलर इंसुलेटर कहते हैं। और 1001 पर क्या हुआ, 1001 पर क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन आया बाहर। इसको हम वर्ड लिखते हैं एनसीईआरटी में, ब्रेकडाउन फील्ड। ब्रेक हो गया, टूट गया उसका घमंड, टूट गया उसका। 1001 पर ब्रेकडाउन फील्ड हुआ,
ब्रेक डाउन हुआ उसका और उसने इलेक्ट्रॉन को जाने दिया। आपको समझ रहे क्या चल रहा है भाई? यानी कि आपको ऐसा सोचना है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, मैं जब भी कुछ बता रही हूँ ना तो आपको सोचना है। हमने लास्ट टाइम क्या बोला था आपको? हमने आपको बोला था कि एक ग्लास रॉड रहेगा, उसमें पॉजिटिव रहेगा, हाँ, उसमें पॉजिटिव रहेगा। और हमने क्या बोला था कि समझो यहाँ एक सिल्क क्लॉथ है, फॉर एग्जाम्पल ये सिल्क क्लॉथ है, क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। यानी कि ये चार्जेस जो एकदम आपको कैसे लगते हैं, एकदम निष्कलंक, एकदम इनोसेंट लग रहे हैं, विदाउट टचिंग दे आर अट्रैक्टिंग। तुमने क्या किया? कोम्ब को अपने बाल पे रब किया, पेपर के टुकड़े आके चिपक गए। कैसे चिपके रे? मैंने तो टच नहीं किया था। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलूं? मैं छुआ नहीं उसको, थोड़ा सा नजदीक लेके गए पर छुआ नहीं उसको, फिर भी उसने पेपर के टुकड़ों को क्या किया? अट्रैक्ट किया। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑल्सो अप्लाइंग, ये जो फोर्स लगाते हैं ना, जहां टचिंग नहीं हो रही है, जहां वो छू नहीं रहे एक दूसरे को, इसको हम कहते हैं फील्ड फोर्स। क्या कहते हैं इसको? फील्ड फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ फील्ड फोर्स, उधर एक फील्ड है। अच्छा, दूसरा कौन सा फोर्स है जो फील्ड फोर्स बोल सकते हैं? दूसरा कौन सा फोर्स है जो आपने पढ़ा है जो फील्ड फोर्स बोल सकते हैं हम लोग? ग्रेविटेशन। न, गिराओ अपने पेन को नीचे, बुक को नीचे गिराओ। क्या वो पुल नहीं कर रहा है? क्या तुम जाके जमीन पे रख रहे हो उसको? नहीं, ऊपर से ही वो उसको खींच के नीचे लेके आ रहा है। दैट इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स is a field force and electrostatic force is also a field force। यानी कि बिना टच किए, बिना टच किए वो क्या कर रहा है? उसको खींच रहा है। या यू कैन से यस राम, हम बोल रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड। मैं क्यों मैग्नेटिक फील्ड का नाम नहीं ले रही हूँ? क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, बट है। एग्रीड। मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, क्यों नहीं होता है भाई? मैग्नेट को लेके जाएंगे वो उधर से इतना पावरफुल मैग्नेट होगा तो वो खींच के लाएगा उसको। वो कार्टून्स में अपन देखते थे, वो टॉम एंड जेरी के कार्टून में वो मैग्नेट से पुल करके लेके आएगा। हॉर्सशू मैग्नेट, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ योर कार्टून नेटवर्क इज फुल ऑफ फिजिक्स, एक्सट्रीम ऑफ फिजिक्स। आई थिंक टॉम एंड जेरी शोज आर फुल फिजिक्स। वो देख लिया तो फिजिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, दो चीजों पर मेरे को पूरा विश्वास है। एक अपना ट्रेन, ट्रेन में पूरा अपना फिजिक्स क्लियर हो जाता है। कौन किसको धक्का दिया, किसको मारा, उधर ही अपना हो गया फिजिक्स। फिजिक्स ही चलता रहता है वहां। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज ब्रेक डाउन फील्ड फोर्स और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नहीं बेटा, डॉपलर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, आई विल कम टू इट, ओके? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ब्रेक डाउन फील्ड और फील्ड फोर्स। आई होप ये तीनों चीजें आपके दिमाग में बैठ गया कि ये जो इंसुलेटर होता है बड़ा कमीना होता है, जल्दी मानेगा नहीं। मतलब जितना आप उसके इसको करना, मतलब हमको उससे पुल करना है यार और लेना है। मतलब उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है ना, बहुत ज्यादा होती है भाई। और जब उसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर आया, हम बोलते हैं तोड़ा रे उसको, तोड़ा, ब्रेक डाउन, हमने उसको तोड़ दिया। और उसके इसमें हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर लाया, बट इट्स क्वाइट अ डिफरेंट थिंग। और वो 1001 पर वो ब्रेकडाउन फील्ड जनरेट हो रहा है। तो क्या मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को आपके सामने लिखना चाहती हूँ? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, आई वुड लाइक टू राइट द डेफिनेशन so that you understand. I hope you're following what I'm saying, because this is the process of understanding the most difficult chapter, in fact. But it is a very simple chapter if you understand the concept from the base. So the dielectric strength of an insulator, people call this chapter very difficult, but I find this chapter fantastic. I just feel the concept is somewhere
not given to you in a proper way. So that's the reason you find it difficult. Otherwise, it's a fantastic chapter. So dielectric strength of an insulator is the maximum strength, you can write with me, of the field. I hope you're maintaining your notes. It can withstand without becoming a conductor. Right? Dielectric strength वो होता है जब the maximum strength, you understand, maximum strength जो वो withstand, मतलब वो 1000 और 1000, 10,000 और 10,001 का कंसेप्ट अगर आपको समझा है तो आपको ये समझ में आएगा, अरे वो जो 10,000 बोला था वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है मटेरियल का, जब वो थोड़ा सा और दे देते हैं हम लोग और वो टूट जाता है तो हम बोलते हैं कि उसका नाम क्या है, ब्रेकडाउन. सो आई एम राइटिंग ब्रेकडाउन ऑल्सो. द ब्रेकडाउन field, you can write, is the minimum field around an insulator. So I'm very clear, I'm telling you there is a breakdown field and an insulator, or there is breakdown even going to happen in semiconductors. So this word is going to come there also. ये कुछ ऐसा नहीं कि आपको, it is always around, breakdown field is always here. So required to conduct charge through it. इसको ब्रेकडाउन फील्ड कहते हैं. मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ 10,000 की बात हो रही है और ये जो मैं बोल रही हूँ 10,001 की बात हो रही है. यस, वो नियरनेस की बात हो रही है राज. यानी कि ये सब क्या है, फील्ड कंसेप्ट है. आपने देखा है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड. तो आज मैंने तुमको समझाया वो फील्ड क्या होता है. छुआ नहीं बट ले लिया भाई, असर तो हुआ. यू अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट टच इट. ग्रेविटेशन में क्या होता है, सारी चीज आपकी गिर रही है भाई, मैंने थोड़ा ना जाके जमीन पर रखी और मैंने कहा देखो मैंने ग्रेविटी पता लगाया, थोड़ा ना ऐसा हुआ. It is falling, there is some field, there is some pull which is happening, and that is basically the field force. इसलिए उसको field force के नाम से जाना जाता है. It should be called as the field force. Are you clear with this concept now? थोड़ा थोड़ा करके हम build कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके हमारे सिस्टम को समझा रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली फिजिक्स क्या होती है, एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या होती है. सो आई होप टिल नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर एंड आई नीड परमिशन टू गो अहेड. Okay, so can I go ahead? I hope you're understanding. Any? Okay, this is very clear concepts. I just like to keep my concepts very clear so that when you read the textbook, you'll say, kya hai, kuch bhi to nahi hai. So let's come to this. Oh, the images are just to just tell you what is the conductors and insulators. Images are just to help you with, how the electrical properties are more dominant in the conductors compared to that of insulators. That means the energy transfer in conductors is more compared to that of insulators. That's what the diagram is showing you on every slide. So I'll just keep repeating some of the diagrams so that you get used to the concept. Yeah. Okay, can I proceed? Okay. Thank you. So now I'm going to come to a concept which you can write in your book as induction by electric charges.
induction by electric charges, which is also called as electrostatic induction. A very, very important concept. अगर आपको समझा तो जीत गए भाई, जीत गए. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं इसको. एंड व्हाट इज दिस, मतलब कुछ लोग इसको ESI, ESI करके आप NCERT में देखेंगे इस वर्ड को, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अनदर वर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो 12th में आएगा, जिसको हम लोग EMI के नाम से जानते हैं. दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ऑब्वियसली मेरा पहला सवाल ये आपसे है कि इंडक्शन का मतलब क्या होता है. मैंने एक्चुअली आपको बता दिया, बट इंडक्शन का मतलब है कुछ ऐसा करना बिना टच किए, विदाउट मेकिंग अ कॉन्टैक्ट. इंडक्शन का मतलब होता है डूइंग समथिंग विदाउट टचिंग. मैं उसे टच नहीं कर रहा भाई, वो अपने आप आया, मैंने कुछ नहीं किया. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? I did not say anything, I did not do anything, but वो अपने आप आया, मेरे को नहीं पता कैसे आया, क्या आया. मतलब induction is doing a job without touching. Okay, so now let us keep that in mind when we understand what I'm trying to tell you here. थोड़ा सा पीछे जाऊंगी मैं, मतलब केमिस्ट्री एस्पेक्ट और whatever your basic concept के एस्पेक्ट which you know already. Let's come to it and let's understand what I'm trying to tell you. अगर हम एक एटम को, एक मटेरियल के अंदर एक एटम को हम विजुअलाइज करें, तो आई थिंक लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि एन एटम इज द नेट चार्ज इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. मतलब आई कैन से देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस. एंड इसके पास ना जब हम लोग बोल रहे हैं ना, इन एन एटम नेट चार्ज इज 0, all atoms have 0 charge. When we are saying that, we are basically defining it as 0 Kelvin. आप ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं. पॉजिटिव चार्ज हम बोल रहे हैं ना, हम लोग कब से बोल रहे हैं, 2-3 लेक्चर से बोल रहे हैं कि नेट चार्ज is 0. And you have agreed to this concept because you said यार equal पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज. बट जब हम ये बात करते हैं ना, एक्चुअली थोड़ा और इसको अगर हम लोग डीप में जाएंगे ना, तो हम लोग जब ये बात करते हैं तो ये हम 0 केल्विन में करते हैं. 0 केल्विन में ये स्टेट है जहां पर उसके पास उतनी एनर्जी होती है कि वो बस रोटेट होता है अपने ऑर्बिट में, उसके पास और ज्यादा कोई एनर्जी नहीं है. आप समझ रहे, वो इधर से उधर भी नहीं जा रहा है, दूसरे एटम की तरफ भी नहीं जा रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है. वो सिर्फ इतनी थोड़ी सी एनर्जी है उसको, जो वो ऑर्बिट में घूम रहा है. 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस. बेहद बहुत ठंडी, तुम तो जियोगे नहीं. -273 डिग्री सेल्सियस मतलब एब्सोल्यूट 0. वेरी गुड. 0 केल्विन पर हम देखते हैं कि उसके पास उतनी एनर्जी रहती है जितना वो सिर्फ, यार मैं अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा हूं, बस मेरे पास एनर्जी नहीं. बट जैसे यही एटम हम रूम टेम्परेचर पे लेके आए, यही बंदे को अगर हम रूम टेम्परेचर पे लेके आए, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, रूम टेम्परेचर मतलब अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस. और अगर मैं 27 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, 0 केल्विन बेटा, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस पे था ये. और अगर मैंने 27 डिग्री सेल्सियस लाया, मतलब कितना होता है केल्विन में, यस 300 केल्विन, मतलब मैंने इतना केल्विन दिया. तो हम ऑब्जर्व करते हैं रूम टेम्परेचर, ये बंदे को एनर्जी मिल जाता है, ये घूम के बाहर आ जाता है, रैंडम कहते हैं, घूमने लगता है. उसके पास टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, तो एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग और वो बाहर आ गया.
जैसे ये बाहर आता है, लास्ट लेक्चर का कंसेप्ट, दो टाइप के चार्ज बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बराबर है? ये सुनो, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो ये तो एकदम बेस हो गया कि जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, क्या हो गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया। Yeah, charges are never single. Just give me a minute. I'll just be back. 1 minute. 1 minute का break ले लो. Yeah. So what I was trying to say is the net charge of a material is still zero only. You know why, no? Why do you think the net charge of a material, ये बाहर आ जाता है, not बाहर out of the metal, ये अपने ही मटेरियल में घूमने निकला अभी। आप समझ रहे, ये बाहर नहीं आ रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नेगेटिव बाहर आया इन द सेंस वो एक ही मटेरियल में उसका नेगेटिव बाहर आया, मतलब वो फ्री हो गया, राइट? सो the negatively charged particles, why they can't completely move out? Because ये जो, जब ये नेगेटिव चला जाता है बाहर तो ये पॉजिटिव हो गया ना, राइट? तो ये उसको अट्रैक्ट करता है। फिर हम वापस बोलते हैं कि देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। यू अंडरस्टैंड? ये तो तुमने केमिस्ट्री में भी काफी बार सुना होगा। दैट मीन्स वी विल से इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव वाला है वो इमीडिएटली नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एंड पुल इट बैक टू द मटेरियल, जाने नहीं देगा एकदम बाहर। यू अंडरस्टैंड? उसको पुल करके वापस लेके आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी मटेरियल में पॉजिटिव और नेगेटिव है, चाहे वो रैंडमली घूम रहा है उसके अंदर ही, बट बाहर नहीं आ रहा है कंप्लीटली, यू नो। So another aspect of this is, suppose there is a material which has plus and minus equal amount of charges. So I'm just putting it randomly like this. Equal number of charges हैं, और मैंने एक ऐसा ग्लास रॉड लाया इधर जो एक्सेसिवली चार्ज्ड है। यस, डिस्टेंस इज लेस, करेक्ट राम। सो यहां पर मैंने एक ग्लास रॉड लाया जिसके पास एक्सेस, इसके पास भी नेगेटिव चार्जेस होता है, बट इसके पास अभी फिलहाल कैसा है, इसके पास एक्सेस ऑफ, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ये, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है इसके पास। ओके, और हमने इसको इसके ये जो एलिमेंट है या जो ये जो मेटल है उसके पास लाया। मुझे आप बताओ क्या होगा इधर, एनीबॉडी? नहीं, दिस रबिंग कंसेप्ट इज ऑलरेडी डन। ये ग्लास रॉड है अपना, ये मैंने उसको चार्ज कर दिया जो लास्ट लेक्चर नंबर 2 में आपको दिखाया गया। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। नाउ यू टेल मी व्हाट विल हैपन टू दिस। तुम मुझे बताओ इसके अंदर क्या होने वाला है। करेक्ट तेजस बिलावा, आई एम वेरी ओके, यस, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप देखते हैं कि कुछ देर बाद क्या हाल है, कुछ देर बाद आप देखते हैं, द सिचुएशन इनसाइड दिस इज कि इसके अंदर जो पॉजिटिव थे, इसके अंदर जो पॉजिटिव थे वो इस पॉजिटिव के साथ क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं,
और नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमने देखा कि ये जो नेगेटिव है ये कॉर्नर पे जमा हो जाता है, ये पॉजिटिव है ये यहाँ जमा हो जाता है क्योंकि वो उससे रिपेल होके उधर जा रहा है। और बीच में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव भी है, बिकॉज देयर बी सम व्हिच आर नॉट वेरी व्हाट यू से, दे आर नॉट going into extreme, and there'll be some in the middle also. So you're looking at the entire structure is changing now. So these electrons are spending more time at the boundary. The electrons are more found at the boundary or at the corners. ये corners पे आपको दिखेगा कि एक different, क्योंकि ये इससे attract हो रहा है, यानी कि यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर there is a force of attraction also, and you can also feel a force of repulsion also. दोनों दिखाई दे रहा है. You can see that there is attractive force here, attractive force भी है. At the same time you are visualizing a repulsive force. Again, you know now what kind of force this is. These are all field forces. ये फिनोमेना जहां नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के उस तरफ इस तरफ माइग्रेट होके बाउंड्री कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं. Anybody has an idea what is the name of such a phenomena? This phenomena is called polarization. Very good, Raj Yadav. This is called polarization. This is called polarization. मैंने क्लासरूम में बोला गर्ल्स आगे बैठेंगे बॉयज वहां बैठेंगे, पोलराइज कर दिया मैंने सेपरेट कर दिया. मैंने एक एक डिस्क्रिमिनेशन सॉर्ट ऑफ लाया वहां पे. मैंने एक सिस्टम बनाई है वहां पे. सो पोलराइज्ड होगी मेरी थॉट कि मैं बोल रही हूँ कि ये यहाँ बैठेंगे ये यहाँ बैठेंगे. I hope you are getting it, and this is called as what? Polarization. So what is happening when a charged body is brought near an uncharged conductor? ये तो uncharged था ना पहले, ये जो था ये uncharged था. This was completely uncharged. इतना भी फोर्स नहीं रहता है जानवी कि वो पूरा लेके लेफ्ट पे है. यू अंडरस्टैंड? इतना भी नहीं. डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ ग्लास रॉड आई एम यूजिंग. तो पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होता. बहुत सारे है ना, बहुत सारे. तो जितना लेफ्ट साइड पे जमा होते हैं वो जमा होते हैं, कुछ उसके पीछे भी है, कुछ उसके पीछे भी है. आई यू अंडरस्टैंडिंग? आप एकदम क्लियर डिविजन नहीं देखेंगे कभी भी. हमेशा वो बीच में कुछ ना कुछ हम बोलते हैं कि द इलेक्ट्रिकल चार्ज विद इन, यहाँ पे हम बोलते हैं नेट चार्ज इज जीरो. अब समझ रहे, बीच में नेट चार्ज जीरो होगा, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव बीच में बचेंगे, और जितना नेगेटिव लेफ्ट साइड जाएगा वो जाएगा. जो फ्री है वो जाएंगे लेफ्ट में, जो फ्री नहीं है अभी भी एटम्स के अपने ऑर्बिट्स में, वो कहाँ जाएंगे? तो बीच में तो कुछ ना कुछ रहेगा बेटा. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे इलेक्ट्रॉन एटम्स के निकल के लेफ्ट साइड पे आ गए, ऐसा थोड़ा ना होगा. राइट? जो वैलेंस है या जो फ्रीली बाउंड है वो लेफ्ट साइड पे दिखाई देंगे. इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे नेट चार्ज बीच में जो है इट इज ऑलवेज जीरो. आई यू अंडरस्टैंडिंग? नेट चार्ज हम बोलते हैं बीच में जीरो होता है, लेफ्ट और राइट में वो एक कंजेशन दिखाई देता है. सो हम क्या देख रहे हैं? एक चार्ज्ड बॉडी. कौन सा चार्ज बॉडी? तेरा ग्लास रॉड तूने एक अनचार्ज्ड कंडक्टर के सामने लाया. जो द फ्री चार्जेस इन दैट कंडक्टर, ये जो लेफ्ट और राइट में जमा हो रहे हैं, कैन आई कॉल देम फ्री चार्जेस? ये जो जमा हो रहे हैं ये कैसे चार्जेस हैं? ये फ्री चार्जेस हैं. इसीलिए तो ये फिनोमेना दिखा गया है जहां पोलराइजेशन हो रही है. यानी कि आप समझो आपने क्या किया. आपने एक जो कंडक्टर था जिसके पास कुछ नहीं था, यू अंडरस्टैंड, उसके क्या बोलते हैं, उसके प्लस माइनस ऐसे ही थे, इट वाज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड. आपने उसको पोलराइज कर दिया. इस पूरे फिनोमेनन को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं. समझ में आया? ये जब होता है, मतलब अगर क्लियरली मैं बोलूं, when a charged body is brought near an uncharged conductor, the free charges of that conductor is getting polarized. You understand? And when this happens, this phenomenon is called as electrostatic induction. Yes, induction without touching, a job without touching, a job done without making a contact. सोशल डिस्टेंसिंग है यहाँ, दिख रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग. सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए हमने सामने वाले की मार दी. ऐसा है.
Are you understanding? कांटेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट मार दी वहां से, दिमाग का खेल किया यहाँ पे। क्लियर है? तो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑन द लेफ्ट साइड. So I'll just mention the definition over here for you to understand the concept very clearly. So what is it when a charged body is brought near an uncharged conductor? The free charges in that conductor get polarized. और अगर ये हुआ कि वो पोलराइज हुआ, then this phenomenon is called as electrostatic induction, which is a very, very important concept in 12th standard. I mean, hundreds of people will tell you कि ये concept जिसको आता है उसी को capacitor समझता है, उसी को पोलर और नॉन पोलर समझेगा भी. अगर आपने पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस की बात की है केमिस्ट्री में, तो आपको ये जो डेफिनेशन है, उससे ये सब कंसेप्ट समझेगा. See, I will not insist on doing anything. My job is whether you want to draw the diagram, you don't want to draw the diagram. ये सब आपका पर्सनल ये चीजें हैं, मैं आपको जाके चेक नहीं करने वाला. आप बच्चे नहीं रहे अभी, आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है आप वही करें. आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है. क्या व्हेन अ चार्ज बॉडी इज है बेटा, थोड़ा तो टाइपो एरर आता ही यार. नीरज यादव, इतना तो समझ जाओ. तुम इतना शॉर्टकट मारते हो व्हाट्सएप पे, मैंने कभी पूछा क्या? तुम तो यहाँ चैट बॉक्स में भी तो शॉर्टकट मारते हो. एक मैंने डी का क्या इसे पकड़ लिया मेरे को. कहाँ कौन सी कमिटी है यार ये? इतना तो मूवीज की कमिटी में नहीं होता है. तुम्हारी व्हाट्सएप लैंग्वेज समझी है? ये तो व्हाट्सएप लैंग्वेज इधर की इधर. नहीं नहीं, मैं ऐसे ही अरे हमें भी मौका दो. या ओके. सडनली सीबीआई बन जाते हैं. हो गया, लिख के हो गया. अच्छा, एक सवाल पूछूं. यहाँ मैंने कहा कि यहाँ दोनों फोर्सेस हैं. ओके, यहाँ दोनों फोर्सेस है और काफी इंटेलिजेंट हो आप लोग. मैं देख रही हूँ कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स है. मतलब आप को रिलेट कर पा रहे हैं स्कूल को, कॉलेज से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से. सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है. यस बेटा, यस. तो आप मुझे बताओ, ये फोर्स में बड़ा कौन है, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? कौन बताएगा? कौन बताएगा मेरे को कि अट्रैक्शन या रिपल्सिव कौन है बड़ा, कौन है यहाँ ज्यादा? ओके, नाउ देयर इज लॉट ऑफ वंडरफुल आंसर्स. कुछ लोग बोल रहे हैं ये इक्वल है, कुछ लोग बोल रहे रिपल्शन है, कुछ लोग बोलते सेम रहेगा. बट यस यस. तो जो लोग चैट बॉक्स में अट्रैक्शन लिख रहे हैं वो सही जवाब है. रिपल्शन से ज्यादा अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा रहेगी. यू अंडरस्टैंड? बिकॉज द डिस्टेंस, अभी तो तुम लोग बोल रहे थे डिस्टेंस की भी बात होगी ना भाई. रिपल्शन जो है वो काफी दूर, डिस्टेंस काफी है उसमें. जब अट्रैक्शन आप देखोगे कि इतना भी ये नहीं है. गैप इज लाइक दैट गैप विल बी लाइक देयर विल बी अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन देम, बट देयर विल बी. तो मैं मैग्नीफाई करके ड्रॉ करूँ. सो याद रखना, अगर किसी ने जुर्रत की तुमसे पूछने के लिए, तो बोलना ये यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है रिपल्शन से कंपेयर. कंसेप्ट पे है ये सब. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब कैन अ चार्ज्ड बॉडी अप्लाई फोर्स ऑन एन अनचार्ज्ड बॉडी? अब अगर किसी ने ऐसा सवाल पूछ लिया, कैन अ चार्ज्ड बॉडी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन अनचार्ज्ड बॉडी? यस, इट इज पॉसिबल. अगर मैंने आपको ये पहले पूछा होता ना तो आप ना बोलते.
क्योंकि सेकेंड लेक्चर के हिसाब से आप क्या करते हैं, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन, और तो आप बोलते हैं ये अनचार्ज है तो कहां से अट्रैक्शन और रिपल्शन आएगा। बट अभी कंसेप्ट और क्लियर हो रहा है कि एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी पर क्या कर सकता है, कर सकता है वो, इट विल एक्सर्ट सम फोर्स, और वो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा दिखाई देता है यहां पर। ओके ओके, कैन आई प्रोसीड? Can I proceed? Yes. Now, I'm going to teach you something which is very, very important. So I want your attention for the next 10-15 minutes and then we'll be done. So this is quite important. And the heading that I would, yes, ulta is also possible, Pranay. जब मैं प्लस बोलूं तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो वो पॉजिटिव को कॉर्नर पे बाउंड्री पे आएगा। यस, वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। या एक कंसेप्ट को बताए तो दूसरा अपने आप करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ से फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, मेथड्स टू चार्ज ए बॉडी। मेथड्स टू चार्ज अ बॉडी, एक बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं? तो याद रखना, अच्छा पहले एक वेरी बेसिक सवाल, अगर मैंने कहा कि कोई भी मेटल है और मैंने दो वर्ड्स यूज किया यहाँ पे, आपको मुझे बताना है क्या ये दोनों वर्ड सेम है, क्या ये दोनों वर्ड सेम है? नो, ये दोनों वर्ड सेम नहीं है। अच्छा, इसमें से कौन सा जीरो है? राइट वाला जीरो है, लेफ्ट वाला जीरो नहीं है। चार्जेस तो हर बॉडी में रहेगा। अगर मैंने कहा कि 1000 पॉजिटिव चार्जेस है तो 1000 नेगेटिव चार्जेस है, मतलब मैं एकदम बेस को आपको क्लियर कर रही हूँ, अभी वो दिमाग में रखना ही नहीं है डाउट। चार्ज वर्ड और नेट चार्ज में बहुत फर्क है, ये तो आपको पता ही रहेगा। सो चार्ज और नेट चार्ज जो है ये टू डिफरेंट कंसेप्ट्स है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। So when I say a body is applying a force because of the net charge and not because of the charge, क्या बोला मैंने, सुना आपने? वापस बोलो, a body applies force because of the net charge and not because of the charge, करेक्ट बोला मैंने? एक बॉडी जब फोर्स की बात आ रही है तब किसकी बात हो रही है, नेट चार्ज की, चार्ज की नहीं। चार्ज तो सबके पास है भाई, मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव है। बॉडी अगर अप्लाई कर रहा है फोर्स, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑलवेज द नेट चार्ज एंड नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट अ सिंगल चार्ज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ अ बॉडी नीड्स टू बी चार्ज means to create net charge either by increasing or decreasing the number of electrons. So ये पॉइंट मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको समझे मैं क्या बोल रही हूँ। So I'll just write the point. So those of you all, if you read it again, you'll understand what I'm saying. जो जिसको फर्स्ट क्लिक पे नहीं समझा, वो होता है रे, इंसान है, अपन इंसान है, कभी कभी ऐसा होता है अपने को पहले इस पे नहीं समझ सकते क्या बोली, यू नो, फिर कान खुले हो जाते क्या बोली। सो लेट्स सी, अ बॉडी applies force because of net charge and not because of net, sorry, and not because of just charge। ये एक पॉइंट आपको याद रखना।
दूसरा मैं आपको बता रही हूं कि अगर आपको ऐसा क्रिएट करना है, दैट इज इफ अ बॉडी नीड्स टू बी चार्ज्ड, मीन्स टू क्रिएट net charge either by increasing or decreasing, ये तो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, the number of electrons. तो इसको मैंने एक डिफरेंट तरीके से लिखा. क्यों लिखा आपको समझेगा. यू नो लेटर ऑन व्हेन वी आर डूइंग एमसीक्यूज एंड ऑल, द वे दे राइट इज क्वाइट डिफरेंट, यू नो. So if a body needs to be charged, then there are two methods. एक, the methods, एक का नाम है by conduction and दूसरे का नाम है by induction. You agree? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है. दो वर्ड्स हैं, कंडक्शन एंड इंडक्शन. So there is method of conduction and there is method of induction. So now we need to look at both the methods and keep very clear in our mind what is happening. Yes. Yeah. So let us see. अभी समझो एक मेटल लिया मैंने. ध्यान से सुनना ये कंसेप्ट. एट द एंड ऑफ दिस 10 minutes एवरीथिंग विल बी क्लियर. ये एक मेटल है और मान लो उसमें प्लस माइनस चार्जेस हैं. आई एम जस्ट पुटिंग रैंडम. यहां पर हम कहते हैं कि ये अनचार्ज्ड है. हम क्या कहेंगे, ये अनचार्ज्ड है भाई. इसका नेट चार्ज 0 है. नाउ मुझे इसको चार्ज करना है, ठीक है. तो इसको चार्ज करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक लिया, उसको रब किया, और मैंने ये जो प्लस माइनस वाला है इसके सामने जो है मैंने इसको जाके इसको रख दिया. इसको जाके रख दिया यार. तो अगर आप देखेंगे डिफरेंसेस, आई एम टचिंग इट दिस टाइम. और मैंने ये जो है प्लास्टिक है, आपको याद है रेसिन, तो नेगेटिव लिया, ग्लास रॉड लिया था लास्ट टाइम, अभी प्लास्टिक लिया, और मैंने यहाँ पर कांटेक्ट रखा, मतलब मैंने इसको टच किया. क्या होगा भाई अभी, एनी आइडिया. अब इस बार इंडक्शन नहीं है, इंडक्शन है ही नहीं. इंडक्शन में क्या होता है, विदाउट टचिंग भाई. अब क्या होगा यहाँ पे, कुछ अगर वो बहुत नजदीक है तो शायद वो यहाँ आ भी जाए. बट क्या ये एलिमेंट नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है. ओके. कुछ एक कंसेप्ट यहाँ बिफोर आई कंटिन्यू विद दिस, कुछ लोगों का देखो, अगर कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, ओके, मेरे को बताओ नेगेटिव और नेगेटिव क्या होगा. अ बॉडी विच इज नेगेटिवली चार्ज, यूजुअली उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए. तो क्या आप ऐसा इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये जो है वो एक दूसरे से रिपेल होके जाएंगे. एक दूसरे में ही रिपल्शन चल रहा है. मतलब अगर मैं यहाँ पर बीच में, अगर आप नेगेटिव के दो इसको इमेजिन करूं, तो आप सोचो ये दोनों इस कॉर्नर्स पे चले जाएंगे. रिपल्शन मतलब ये बेसिक नेगेटिव बॉडी का एक विजन है आपके सामने, कि जो नेगेटिवली चार्ज रहेगा तो उसको उसके अंदर जो होने वाला है, देयर इज गोइंग टू बी अ रिपल्शन. यू एग्री. करेक्ट. दैट्स गोइंग टू एग्जिस्ट. अच्छा, क्या ये नेगेटिव बाहर आ सकता है. सरफेस तक तो आ गए, क्या ये बाहर आ सकता है. बाहर कौन है, बाहर एयर मॉलिक्यूल है. बाहर कौन है, एयर मॉलिक्यूल है. एयर मॉलिक्यूल के पास भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस रहेगा. बट एयर इज इंसुलेटर.
बट एयर इज इंसुलेटर, यस और नो? ये इलेक्ट्रॉन को बाहर आने नहीं देगा। आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है? एयर विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट बिकॉज एयर इज लाइक एन इंसुलेटर सराउंडिंग इट. एयर इज लाइक एन इंसुलेटर सराउंडिंग इट, सो इट इज नॉट गोइंग टू पुल एनीथिंग बिकॉज वो खुद ही नहीं देने वाला ना पॉजिटिव. वो कुछ नहीं करने वाला है. वो क्या करेगा, उसके नेगेटिव एट द मोस्ट यहाँ पर रिपल्शन देता रहेगा उसको. You know, so the charges end up always at the surface only because similar charges will keep क्या repelling. It cannot go out also क्योंकि बाहर तो air molecules है. air molecule मतलब insulator है, वो उसको बाहर नहीं आने देगा. Just like you just understood conductor और insulator का ये है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना बाहर आ रहे कंडक्टर्स की जो चार्ज है, उसके सरफेस पे चार्जिंग हो रहा है, बाहर नहीं आ रहा है. हमने फर पढ़ा या जो भी पढ़ा अभी तक, वो बाहर नहीं आ रहा है बच्चा. एवरीथिंग इज कमिंग टू द सरफेस. जब हम पॉजिटिवली चार्ज कह रहे हैं, जब हम नेगेटिवली चार्ज कह रहे हैं, अंदर उसका जो विजन है ये कुछ ऐसा हो रहा है और वो बाहर आ ही नहीं सकता. बाहर कब आता है? जब मुझे एक पाथ मिलेगा ना बाहर आने के लिए. बट इंसुलेटर तो तुझे पाथ ही नहीं देगा. वो उसको थोड़ा ना पुल करेगा, वो करेगा ही नहीं. इंसुलेटर विल नॉट अलाउ एनीथिंग टू हैपन. अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर अगर आप ये डायग्राम की तरफ देखें तो यहाँ पे एयर नहीं है. एयर इज नॉट देयर ना, बिकॉज ये कांटेक्ट में आया, मतलब यहाँ एयर नहीं है. तो देर इज अ चांस कि ये यहाँ से जा सकता है. अगर एयर होता तो नहीं जा सकता, बट अगर नहीं है तो एक फ्लो होगा वहां पर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मान लो यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन्स थे और एक गया, तो कितना बचा? 8. आठों ने फिर रिपल्शन लगाई तो एक को वापस पुश किया तो बचा 7. सातों ने वापस पुश किया एक, तो यहाँ एक वापस गया अंदर, तो यहाँ हो गया 6. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ओके, सुनो सुनो सुनो, ठीक है. एंड में ऐसा हाल हो गया कि इधर 5 था और इधर भी 5 थे. अब ट्रांसफर नहीं होगा. अब नेगेटिव को नहीं खींचेगा, इक्वल हो जाते वो लोग, दोनों तरफ इक्विलिब्रियम आ जाती है. बट बिफोर दिस हैपेंड, बिफोर इट स्टेबलाइज्ड, बिफोर दिस ये हुआ, तब तक वो एक दूसरे को ले रहे थे. एक सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन चालू था अनटिल फाइनली क्या हो गया, दोनों में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, वो मतलब जितने भी चार्जेस थे, वो क्या हो गए, एक हद तक हम बोलते हैं कि वो इक्वल हो गए. अब ये कंडक्टर जो है, ये बेवकूफ, ये जो अनचार्ज था, क्या मैं बोलूं कि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं? ये जो अनचार्ज था, क्या मैं बोल सकती हूँ कि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं? तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये बॉडी तो चार्ज हो गया भाई? by what? By the flow of electron from one body to another body by contact. This happened by contact. This is called conduction. Got it? यहाँ कांटेक्ट हुआ. ये जो फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, दोनों में कांटेक्ट के बीच में ये हुआ और इसकी वजह से ये हुआ. ये क्लियर हो गया. सी, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, बॉर्डर्स पे सारे जाके नेगेटिव खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं. और अगर कांटेक्ट हुआ, इसका मतलब एयर नहीं है. और अगर एयर नहीं है, इसका मतलब है वो इंसुलेटर नहीं, वो कंडक्टर बन रहा है. मतलब वो एक पाथ दे रहा है, रास्ता दे रहा है. तूने ब्रिज बना दिया उधर. तूने दो रोड को एकदम ज्वाइन कर दिया. रोड को तू ज्वाइन करेगा तो हम लोग जाएंगे ही ना. आई यू अंडरस्टैंडिंग? रास्ता दिख रहा है उसका. इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव को खींचेगा ही ना. इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ऑब्वियसली नेगेटिव को क्या करेंगे, पुल करेंगे. और जब तक एयर नहीं है, वो क्या बोला, एक क्वांटिटी. तो अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, दिस हैज बिकम चार्ज्ड नाउ, क्योंकि उसके पास एक्सेस नेगेटिव चार्ज आ गया. आर यू गेटिंग इट? एंड ये जो हुआ, दिस इज थ्रू कॉन्टैक्ट. इसलिए हम क्या कहते हैं, दिस इज तो कंडक्शन हुआ. गॉट इट? गॉट इट? नाउ थिंक अबाउट इंडक्शन. सेम प्रिंसिपल. I want you to think about induction.
So I've just put some pictures for you to basically understand what's going to happen. So this, now I'm coming to induction. So these are all pictures which are just showing you what the concept is about. अभी induction मैंने बोला तुमको अभी दिमाग में बैठ तो क्या रहेगा कि this is non-contact. तो अगर मैंने कोई भी एलिमेंट ऐसा लिया है जैसे मेरे डायग्राम में है, सपोज मैंने एक प्लस माइनस वाला कोई भी रैंडम डायग्राम लिया है, यहाँ का वापस नेट चार्ज 0 है, इट इज अनचार्ज्ड. नेट चार्ज 0, ये अनचार्ज्ड है. इफ आई ब्रिंग अ चार्ज्ड बॉडी, दैट इज हम नेगेटिव के साथ खेल रहे थे, इफ आई ब्रिंग अ चार्ज बॉडी वेरी क्लोज टू इट बट आई एम नॉट टचिंग इट. अब देखो, ध्यान से सुनो, ये 4 स्टेप में होता है, ध्यान से सुनो मैं क्या करूँ. अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है कि यहाँ के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये वाले इसके जो पॉजिटिव है ये कॉर्नर पे आ जाएंगे, और इसके नेगेटिव जो है पोलराइजेशन इफेक्ट दिखाते हुए नेगेटिव उस तरफ चली जाएगी. क्लियर हो रहा है भाई कंसेप्ट? ये दिखाएगा. अब मैं एक और इसमें ऐड कर लूं कुछ. अगर ऐसा होता है, ये तो आपको पता ही है अभी नेगेटिव कैसे दिखने वाला है यहाँ पे. अब यहाँ पर जो होने वाला है एक और चीज, अगर यहाँ के प्लस यहाँ आ गए हैं, यहाँ पे प्लस माइनस का जो भी है बीच में है, यहाँ माइनस है, मान लो मैंने इधर इसको ग्राउंड पे लगा दिया, एक वायर से मैंने इसको अर्थ पे लगा दिया, तो क्या होगा, कोई सोचेगा? जैसे मैंने इसको अर्थ पे लगा दिया बच्चास, क्या होने वाला है, फ्लो होगा. ये जो नेगेटिव उसको पाथ मिल गई, तो ये सीधा ग्राउंड में चली जाती है. सीधा क्या होती है, ग्राउंड पर चली जाती है. यू अंडरस्टैंडिंग? और जबकि ये वाले जो है पॉजिटिव, ये कहीं नहीं जाते हैं, हम इनको बाउंड चार्जेस कहते हैं. बाउंड मतलब दे आर बाउंड बाय द नेगेटिव चार्जेस हियर. सो ये बाउंड चार्जेस कहलाते हैं, इनको कुछ नहीं होता है, बट ये जो नेगेटिव है वो नीचे चले जाते हैं. तो अगर वो स्पेल बाउंड है, स्पेल बाउंड सुना है, आई एम स्पीचलेस बोलते हो तुम, ये पॉजिटिव इतना अट्रैक्ट हो गया है इस नेगेटिव से, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा. मैं भाई इधर, मैं खुश हूं यहाँ पे. स्पेल बाउंड, हम बोलते हैं कि ये स्पेल बाउंड हो गया है, और उसको देख के मैं, you understand, I'm not talking about Valentine's Day now, I'm talking about positive and negative. So this positive charges are bound charges because वो इतने अट्रैक्ट हो गए इस नेगेटिव, मैं तो यार सेटिस्फाइड हूँ, मैं तो नहीं आ रहा, तेरे को जाना है तो तू जा. ये नेगेटिव चार्जेस जो है वो ग्राउंड पे चले. ये क्यों ऐसे गए, क्योंकि ये फ्री चार्जेस है, तुमको तो पहले ही बताया था मैंने तुमको जब पोलराइजेशन की कंसेप्ट बताई थी, मैंने कहा था कि ये कैसे चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस हैं, और ये भाई गए नीचे, फ्री चार्जेस है, कंडक्टिंग पाथ दिया तुमने, तो मैं क्यों नहीं जाऊं, मैं गया नीचे. यू गेटिंग इट? गया वो. और अभी अभी अगर, अभी देखो मैं चौथा डायग्राम कैसे ड्रॉ करूं. अगर मैंने वो जो वायर था, ये तुम्हारा नेगेटिव है, ये तुम्हारा वो वाला स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है ये बाउंड है, नो डाउट, और मैंने जो वायर है जो नीचे की तरफ ये काट दिया, जो वायर था ना नीचे जा रहा था उसको काट दिया, तो क्या होगा? कैन एनीबडी टेल मी ये कैसे चार्ज हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हुआ कि नेगेटिवली चार्ज हुआ? इसमें एक्सेस क्या होने वाला है, वो ग्राउंड को निकाल दिया मैंने, उन ग्राउंड को निकाल दिया मैंने. यहाँ एक्सेस ऑफ क्या होगा, यहाँ एक्सेस ऑफ पॉजिटिव होगा. नेगेटिव तो गया ना भाई ग्राउंड, उसको निकाल दिया मैंने. फिर अगर एक्सेस ऑफ ग्राउंड हो गया, ये कैसा बॉडी बन गया, चार्ज्ड बॉडी. डू यू एग्री व्हाट आई एम सेइंग? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया, एंड दिस हैपेंड बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन. आर यू क्लियर व्हेन आई से इंडक्शन एंड कंडक्शन? कोई तुमको हार हर इट्स इम्पॉसिबल दैट यू लूज एनीथिंग. हार मानना ही नहीं है, कोई तुमको हरा ही नहीं सकता है कि अगर कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है. क्लियरली तुमको दो चीजें बताई गई है, कंडक्शन एंड इंडक्शन. कंडक्शन हैपेंस बाय कांटेक्ट, और अगर आपने देखा प्रीवियस स्लाइड, जब कांटेक्ट से होता है तो वहां क्या हो गया था, उसने इलेक्ट्रॉन को पुल किया और वो नेगेटिवली चार्ज हुआ. डिड यू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड?
डिड यू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड? ये नेगेटिवली चार्ज हुआ, ये चार्ज हुआ बट नेगेटिवली चार्ज हुआ क्योंकि उसने एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लिया। जब हम लोग कैपेसिटर के कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है जो मैंने पढ़ाया आपको इंडक्शन में। इंडक्शन में एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी ने एक अनचार्ज्ड बॉडी के क्या किया, प्लस और माइनस को हमने पहले पोलराइज किया, फिर हमने ग्राउंडिंग लगाई, पाथ दी, इलेक्ट्रॉन नीचे गया क्योंकि उसको पाथ मिला फ्लो होने के लिए, तो वो क्यों नहीं फ्लो होगा भाई? मैंने आपसे कहा था कि एयर मॉलिक्यूल रहेगा तो वो नहीं होता है, बट एयर रहेगा तो तुम ऐसे क्या बोलते, तुम्हारा चार्जर पकड़ के खड़े रहते हो तो तुम्हारा चार्जिंग होता है कुछ नहीं। जब पाथ देते हो, जब वो कनेक्ट करते हो तभी तुमको फ्लो दिखेगा। तो नेगेटिवली चार्ज ग्राउंड को चले गए और जब मैंने वो वायरिंग निकाल दी तो पॉजिटिव ज्यादा है क्योंकि नेगेटिव तो ग्राउंड में गया, और अगर नेगेटिव ग्राउंड में गया तो एंड रिजल्ट ये एक्सेस ऑफ पॉजिटिव की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। I hope that today's lecture is absolutely clear in your head, because this is the foundation of the chapter of statics. ये जो है ना, ये एकदम खतरनाक कंसेप्ट है। तुम ये लाइफ टाइम याद रखो, मैं तुमको बोल रही हूँ, इंजीनियरिंग हो कहीं पर भी, जो IITs NITs, यू गो एनीवेयर, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. This is absolutely the foundation of the inductors, conductors, insulators, semiconductors. तो हमने क्या देखा आज, what we saw today is fantastic concept. और ये जो है ना बच्चा, you will remember me when you study capacitor in 12th standard, because ये foundation capacitor को बनाते हुए जाता है. So I hope that you are getting what I was teaching you. I started with the classification of material, where I told you that they coexist. दोनों important है. I hope that part was very clear, where I explained that conductivity and dielectric strength. Followed by, I taught you some new words: dielectric strength, field force, breakdown field. Then I went on to explain the definitions of both of it. Then I went to explain to you what is the induction, how do you process induction funda, going out from minus 273 degrees Celsius, when you heat it up, how it suddenly changes its properties. We studied the concept of electrostatic induction. We studied the concept of polarization. We believe that in such a scenario, the force of attraction is more greater than the force of repulsion. Then we looked at the methods to charge it. We looked at conduction and induction. And then we came to the concept where we bifurcated both of them. आई होप तुमको ये वाला भी समझा कि कांटेक्ट में जितना ट्रांसफर होता है वो कब रुकता है, जब दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाता है. ये रुकेगा ना कभी तो रुकेगा. वो जो इक्विलिब्रियम आ जाता है वहां वो रुक जाती है, क्योंकि दोनों में फिर लेन देन नहीं होगा और वहां वो नेगेटिवली चार्ज हो गया. यू अंडरस्टैंड? नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर को कैसे इमेजिन करना है, वो सब बॉर्डर्स या कॉर्नर्स पे चले जाते हैं. और लास्ट में हमने इंडक्शन को और कंडक्शन को बेसिकली मैंने यहाँ क्या किया है, आपको डिफरेंशिएट करके दिखाया कि अगर हम वो कंडक्टिंग पाथ को कट कर देते हैं तो हमें जो एक्सेस जो चार्ज बॉडी मिल रहा है, that is because of positively charged. So these are some of the diagrams that you will see online or on the internet. These kind of diagrams are always shown, and from here they expect you to understand the different types of material, that is conductors and inductors. So this is a very, very important concept, and that's why I've put a diagram here. If this diagram is self-explanatory, so this is very, very an important part of what I just taught you. कि पहले क्या हो रहा है कि ये प्लस अगर पॉजिटिवली चार्ज है, मैंने नेगेटिव का एग्जांपल दिया था, तो अगर आप माइनस को, अगर आप प्लस वाला बॉडी लेते हैं तो माइनस यहाँ जमा हो जाएगा, प्लस यहाँ जमा हो जाएगा. फिर आप देखेंगे क्या हो रहा है कि मैंने एक कंडक्टिंग पाथ दे दिया, तो यहाँ क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है एक्चुअली माइनस और प्लस जो है, यानी कि इन अदर वर्ड्स यू कैन से द चार्ज इज गेटिंग अ फ्लो. और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ माइनस है और फिर मैंने ये जो ग्राउंड है वो निकाल दिया है, तो ये प्लस हो जाता है. और अगर हम देखेंगे तो देन वील से दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड. बराबर है, हम बोलेंगे कि यार भाई ये नेगेटिवली चार्ज हो गया क्योंकि उसमें एक्सेसिव नेगेटिव आ गया. हमने उल्टा किया तो वो एक्सेसिव पॉजिटिव आ गया था. ठीक है, ऑल कंसेप्ट क्लियर? आई होप इट इज डन.
तो जब आप एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर को एक अनचार्ज कंडक्टर के पास लेके आते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, वो पॉजिटिव हो जाता है। और अगर आप पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को एक अनचार्ज कंडक्टर के पास लेके आते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, वो नेगेटिव हो जाता है। So this is something which is, very, it should be very clear on how it is happening. Yes, I hope it's crystal clear, just like the crystal in front of you. Okay, so I think that's it from me today, and I hope that you will. I have just put some images just for your understanding, so it has nothing to do. It's just to keep your concept absolutely clear. So I hope that the session was interesting, and I hope that you have learned, because the learning part is very, very important for me. That learning part is extremely, extremely important. And I believe that you must have grasped it, right? So thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Have a great day. Have a Valentine's Day. Bye bye. Take care. Stay safe. And please revise. I will upload it. Thank you. The ground will develop a negative charge in induction as per the example. No, the ground is not developing. It is basically the ground is zero potential. You understand? So, charges always go from higher potential to lower potential. Okay, I will explain this, Nusrat. If I wish, I could teach you capacitor a little. तुमने वो जैसा क्या होता है, वो भिखारी का कटोरा जैसा होता है, अगर हम भिखारी को थोड़ा पैसा भी डालते हैं, वो क्या कर देता है, वो छुपाएगा, वापस खाली कटोरा दिखाएगा। इट्स दैट काइंड ऑफ समथिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड, कि वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, वो उसको ले लेता है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हेन आई कम टू द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। ट्रस्ट मी, या यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। या चलो, टेक केयर एवरीबॉडी, सी या, बाय बाय।